So students, today we are going to do a very important part of the chapter ratios, the accounting ratios chapter. We are going to understand profitability ratios because many students have demanded for the concepts of profitability ratios. Therefore, this session is specially designed to understand the gross profit ratio. So we start today's session, profitability ratios. You can very well make out that profitability ratios are those ratios which help in measuring the profit earning ability, because the word profitability itself says profit plus ability. There are two words, profit earning ability. So what is the profit earning ability of the business is ascertained by calculating profitability ratios. In our course, there are 5 ratios: gross profit ratio, net profit ratio, operating ratio, operating profit ratio, and return on investments. सबसे ज़्यादा ratios हमारे profitability के head में ही है. You can see very well there are 5 ratios. We are going to understand the first part of the chapter, that is gross profit ratio. Gross profit ratio formula simple है. Gross profit is the numerator and denominator is revenue from operations. We all should remember the formula: gross profit divided by revenue from operations multiplied by 100. Multiplied by 100 means all profitability ratios are expressed in percentage. हर profitability ratios जो ये हमारी 5 ratios हैं, इन सब का आंसर परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे. Formula of the gross profit, you can see बहुत ही easy formula है. RFO, the revenue from operations. What is the revenue from operations? Revenue from operations refers to sales. और अगर हमें revenue from operations दे रखा है और revenue from operation returns भी दे रखा है, even then हम revenue from operations ही लेते हैं, because revenue from operation is the net sales. It is not only sales, it is net sales minus cost of revenue from operations, which we also call it cost of goods sold in 11th class. But today we know this term as cost of revenue from operation. So short में अगर आपको formula याद करना हो तो simple way है इसको याद करने का, RFO minus cost of RFO. तो अगर आप अपनी selling price में से इसकी cost price minus कर देंगे तो जो भी बचेगा वो क्या होगा बिजनेस का? That will be the gross profit of the business. Now, so revenue from operations is simple, which will be given to you in the question, and if not, then you can use the formula. क्या formula लगा सकते हैं revenue from operations निकालने के लिए? Revenue from operations will be equals to cost of RFO plus gross profit. This is the formula to calculate RFO also. Now, cost of revenue from operations. ये टर्म आपको थोड़ा सा इसका मेहनत करनी है, आपको लर्न करना है, फॉर्मूले को प्रैक्टिस करना है बार बार, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के देयर आर 3 फॉर्मूलाज इन 12th सिलेबस, जिसमें सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है स्टूडेंट्स, द फॉर्मूला नंबर 1, दैट इज ओपनिंग इन्वेंटरी, द ओपनिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग ऑब्वियसली द स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, और प्लस करेंगे इसमें परचेजेस. परचेजेस होता है हमारा परचेजेस टोटल माइनस परचेजेस रिटर्न्स, और यू कैन से रिटर्न आउटवर्ड्स. तो टोटल परचेज में से हमें माइनस करना होता है रिटर्न आउटवर्ड्स, और यू कैन से परचेज रिटर्न्स. ओके, दिस इज कॉल्ड नेट परचेजेस रिटर्न्स. प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो हम क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते थे, जैसे वेजेस यानी कि फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, वेजेस, फ्रेट और कैरेज. कैरेज में कैरेज इनवर्ड्स लेना है, आउटवर्ड्स आपने नहीं लेना है, बिकॉज कैरेज आउटवर्ड इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आता है. ओनली इनवर्ड्स एक्सपेंसेस आर टेकन, या वो फ्रेट इनवर्ड्स हो या कैरेज इनवर्ड्स. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अच्छा उसमें से माइनस क्या करते हैं हम? क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज कॉमनली यूज्ड. ये आपको लर्न करना है. सेकंड फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड
plus purchase of stock in trade plus change in inventory and direct expenses. ये सब आइटम्स हमको गिवन होंगे क्वेश्चन में, परचेज भी गिवन होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी गिवन होगा, चेंज इन इन्वेंट्री का कंसेप्ट हमें आपको आज सिखाना है. इसमें आई विल टेक सम टाइम टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का एक शॉर्टकट भी है, एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है, जो कि आप इसी से निकाल सकते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट, जो फर्स्ट फॉर्मूला था आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ. तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या हो जाएगा? आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, अगर हमको ग्रॉस लॉस दे रखा है तो कैसे निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ आरएफओ? आरएफओ प्लस ग्रॉस लॉस. अगर ग्रॉस लॉस दे रखा होगा क्वेश्चन में तो ग्रॉस लॉस को ऐड कर देंगे आरएफओ में, वी विल गेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. और अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है, आरएफओ भी दे रखा है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिल जाएगा. तो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 फॉर्मूलाज, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला सबसे कॉमन है और हमें इसको प्रैक्टिस करना है और याद रखना है. एक नोट देख लीजिएगा, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑलवेज एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स. स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं हो सकते. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट फॉर सेल, और इन्वेंट्री वो होती है जिसको हमने सेल के लिए यूज करना होता है. ये इसका सिग्निफिकेंस है. व्हाई डू वी कैलकुलेट दिस रेशियो? is calculated to measure the efficiency of production or purchases and selling operations are being carried on. Higher the ratio, better it is. जितना ये रेशो ज्यादा होगा उतना ही फर्म के लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन होगा, फेवरेबल होगा. तो करते हैं अब हम क्वेश्चंस. मीनिंग वी हैव अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6 लाख रुपीज गिवन है. ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट नॉट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है 25% ऑन कॉस्ट. द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो विल बी व्हाट? तो आप एग्जाम में क्वेश्चन ये आपके सामने आएगा तो आप वो फॉर्मूला एकदम क्लिक करेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. आपको फॉर्मूला पता होगा, न्यूमरेटर ग्रॉस प्रॉफिट, डिनोमिनेटर आरएफओ मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट? हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 25% ऑन कॉस्ट. व्हाट डज इट मीन? इसको थोड़ा सा आप, आई विल जस्ट टेक 1 मिनट, और इस 1 मिनट में आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी रेशोज में आपको हेल्प मिल जाएगी इससे. इफ यू सी, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. 25% अगर ये कॉस्ट पर है और हमें क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है, तो हम 25% इस 6 लाख का नहीं निकाल सकते. तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये प्रॉफिट हमारा 1/4, 25% मीन्स 25 अपॉन 100, और 25 अपॉन 100 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वी कैन से 25 अपॉन 100 और 1/4. तो अगर ये कॉस्ट का 1/4 है, तो ये सेल्स यानी कि आरएफओ का कितना होगा? तो आपको कहेंगे सर आरएफओ पर ये होगा 1/5 ऑन आरएफओ, क्योंकि आरएफओ हमेशा ग्रेटर होता है कॉस्ट से. तो हमेशा आप डिनोमिनेटर में एक नंबर ऐड कर दो. इसी तरह से अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट मींस 1/5 ऑन कॉस्ट. तो ये सेल्स पर कितना हो जाएगा? 1/6 ऑन आरएफओ. आरएफओ पर ये 1/6 हो जाएगा. सिमिलरली अगर आपको ये 33 1/3% दे रखा है कॉस्ट पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट. 33 1/3% मींस व्हाट? 100/3%. और यहाँ आप 1 ले लीजिए, तो 100 से 100 कैंसिल, इट इज 1/3. कभी भी आपको अगर 33 1/3 दिखता है तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज 1/3. तो अगर ये 1/3 कॉस्ट पर है, तो अब आप बताओ कि कितना होना चाहिए ये आरएफओ पर. भाई 1/4 था कॉस्ट पर तो 1/5 हो गया, 1/5 था तो ये 1/6 हो गया. अनडाउटेडली 1/4 ऑन आरएफओ हो जाएगा. तो ये टेबल आपको याद रखना है, हाउ टू क्विकली कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू प्रॉफिट ऑन आरएफओ. एंड प्रॉफिट ऑन आरएफओ अगर जाना है, हमको दे रखा है और हमें कॉस्ट पर जाना है, तो अनडाउटेडली हमें एक नंबर माइनस करना होगा. इसको मैथमेटिकली भी आप ड्राइव कर सकते हो, बट एग्जामिनेशन में ज्यादा इतना डेरिवेशन आपको दिखाने को आएगा नहीं.
सिर्फ आपको क्लिक करना होगा आंसर ABCD में से एक सिलेक्ट करके, तो दिस विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। अब आप देखो, प्रॉफिट दे रखा है 1/4 ऑन कॉस्ट। अगर 1/4 कॉस्ट पर है तो स्टूडेंट्स RFO हमको दे रखा है, तो RFO पर कितना हो जाएगा, आपको हमने यहाँ टेबल में बताया है 1/5, तो 1/5 ऑन RFO हो जाएगा। इसका मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बहुत ही इजी है आपके लिए, कि 6 लाख का हम डायरेक्ट ही कितना निकाल दें, 1/5, विच विल गिव यू 1,20,000। तो अब आपका जीपी रेशो निकालने के लिए आपको 1 सेकेंड लगेगा। जीपी रेशो कितना आएगा हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100, दैट मीन्स 125 आर this much and 520s are 100. तो अब आप देख सकते हैं कि our answer is coming absolutely correct, which is 20%. So you will mark B as a correct option. Hope understood by all of you. और अगर आपको ये लग रहा है कि ये 1/4 1/5 कैसे बन गया, 1/5 1/6 कैसे हो गया, तो यू कैन डू इट मैथमेटिकली ऑल्सो, विच इज अ वेरी इजी वे आउट, कि आप कॉस्ट को x मान लीजिए, और x में से, अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही है। कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूला होता है RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप कॉस्ट ऑफ RFO को x मान लेते हो, क्योंकि कॉस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, एंड RFO आपको गिवन है 6 लाख, माइनस करिए ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज x/4, क्योंकि 25% ऑन कॉस्ट है। कॉस्ट हमने कितना माना है, x, तो 25% ऑफ x मीन्स 1/4 ऑफ x, दैट मीन्स x/4। अगर आप x को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो इट विल बी प्लस x/4, और x/4 इज इक्वल टू 6 लाख। अब अगर आप 4x प्लस x करते हैं, इसका एलसीएम लेकर 5x अपॉन 4 आएगा स्टूडेंट्स, विच विल बी इक्वल टू 6 लाख। तो x की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 6 लाख इंटू 4 अपॉन 5, विच विल गिव यू 4,80,000, यानी कि कॉस्ट। अब कॉस्ट से निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बड़ा ही इजी होगा आपके लिए। RFO में से कॉस्ट ऑफ RFO माइनस कर दीजिए, RFO आपका है 6 लाख, इसमें से माइनस कर दीजिए आप कॉस्ट ऑफ RFO 4,80,000, तब भी आपका कितना अमाउंट निकल कर आ रहा है, 1,20,000। तो बोथ द वेज आर राइट, आप x मान की भी कर सकते हो, और यहां आपने देखा इन 1 सेकेंड वी गॉट द आंसर। तो कॉस्ट से अगर RFO पर जाना है तो एक डिनोमिनेटर में ऐड कर दीजिए, और अगर RFO से कॉस्ट की तरफ आना है आपको, तो एक डिनोमिनेटर में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो both the ways are right, whichever you find easier you can use that in the examination. आप x से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, there are so many ways. Second question देखते हैं, a company's cash RFO are 25%. Cash RFO means cash revenue from operation, जिसे हम cash sales कहते हैं। This is cash sales basically. तो कैश सेल्स बिजनेस की है 25% ऑफ RFO, मींस टोटल सेल्स का 25% कैश RFO है। परचेज 6,90,000 है। क्रेडिट RFO मींस क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स हमें दे रखा है 6 लाख, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज गिवन 50,000। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको बड़े ध्यान से देखना है अपने क्वेश्चन को, और बड़े ही इंटेलिजेंटली आपने इसको अंडरस्टैंड भी करना है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें RFO चाहिए, जीपी रेशो, बिकॉज हमसे वो मांग रहा है। दिस एंटायर एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन जीपी रेशो। तो इफ आई से कैलकुलेट जीपी रेशो, तो यू विल अग्री दैट कैलकुलेट जीपी रेशो। इफ आई राइट दिस क्वेश्चन, द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इसमें निकालते हैं, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या निकालना होगा, टेल मी। First and foremost thing is to be calculated is what? The gross profit and the RFO. तो RFO का हमें एक फॉर्मूला तो ये पता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन इस टाइम तो ग्रॉस प्रॉफिट का कोई हमें दूर दूर तक भी हेल्प नहीं मिल रही है। तो देयर इज वन मोर वे आउट टू कैलकुलेट RFO, दैट इज कैश RFO प्लस क्रेडिट RFO। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे RFO को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स मेक्स अ टोटल सेल्स एंड RFO इज सेल्स। तो अब आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आराम से निकाल पाएंगे।
अब आपको कैश आरएफओ तो हमको नहीं दिया है, तो आरएफओ का 25% कैश आरएफओ है, तो हमें जो आइटम नहीं दिया हो, जो भी हमें फिगर मिसिंग है, उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो हमने आरएफओ को एक्स मान लिया, और कैश आरएफओ है 25%, दैट मीन्स एक्स बाय 4। इस एक्स का आरएफओ का 25%, दैट मीन्स 25/100, 25 4 100, तो 25/100 एक्स मीन्स एक्स बाय 4। सिंप्लीफाई करके लिख दिया हमने डायरेक्ट उसको। प्लस करेंगे हम क्रेडिट आरएफओ, जो कि हमको दे रखा है 6 लाख। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको इधर लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो x माइनस एक्स बाय 4 हो जाएगा। सिंपल क्लास 2 की मैथमेटिक्स है ये हमारी। तो दिस सिंपल अलजेब्रा यू कैन सॉल्व। अब इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। 4x माइनस एक्स इज हाउ मच, 3x/4, एंड दिस इज इक्वल्स टू 6 लाख। अब आप देख के बताओ फटाफट कि 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 6 × 4 24 लाख। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है 24 लाख/3, कितना कहलाएंगे, आरएफओ इज 8 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आरएफओ हमें मिल चुका है। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए तो वी कैन कंफर्टेबली गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ आरएफओ, जिसकी हेल्प से हम ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ की इंफॉर्मेशन हमको गिवन है क्वेश्चन में। आप बताइए कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला हमने क्या बताया है आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि परचेजेस आर गिवन 6,90,000, और हमको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन है क्वेश्चन में कहीं पर भी। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री सेपरेटली कहीं नहीं दी हुई है। हमको एक लाइन लिखी हुई है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन ओपनिंग। हमारे पास ईयर के बिगिनिंग में जितना स्टॉक था, देखिएगा ईयर के बिगिनिंग में हमारे पास स्टॉक था, सपोज करिएगा से 1,00,000 रुपीज, ओके। और ईयर एंड पर वो कहता है कि जो हमारा, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग इन्वेंट्री, जो ईयर के बिगिनिंग में होता है, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री। और अगर हम आपसे कहें कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जब हमारा ईयर एंड हुआ, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी हो गई 1,50,000, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। तो अगर कभी भी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से ज्यादा हो जाएगी, ऐसा तो आप सोच सकते हैं कि एक नेगेटिव सिचुएशन है कि जितना हमारे पास ओपनिंग था और हमने परचेज भी किया उसके बाद 6,90,000 का, लेकिन तब भी हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, जितना भी हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेज करने के बावजूद भी हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन दैट। आप उस वैल्यू को निकाल के देख सकते हैं कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 1,00,000 थी, हमने परचेज किया इसमें स्टूडेंट 6,90,000, ओके, दैट मीन्स ये हो गया 7,90,000। और हमने, अब हमको सेल के बारे में कुछ नहीं कह रहा है हमसे, और मान लीजिए अगर हमको सेल्स के बारे में ये कह दे कि सर कुछ सेल भी हो गया, हमारा जितना हमने परचेज करा था वो सब हमारा सोल्ड भी हो जाता है, तो हमने इसमें देखा कि हमारा आरएफओ कितना दे रखा है 8 लाख, और ये जो 6,90,000 की परचेज है, ये सपोज करिएगा पूरी कॉस्ट आपकी सोल्ड हो जाती है, तो ये पूरा 6,90,000 का आपका सेल हो जाता है। इसका मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए 1,00,000, बट क्लोजिंग इन्वेंट्री इंस्टेड ऑफ 1,00,000 दिखा रही है 1,50,000। तो अगर कभी भी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सेस में होगी, प्लीज डू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज अ नेगेटिव सिचुएशन। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी ज्यादा होती है, दैट इज अ पॉजिटिव सिचुएशन, और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सेस में होती है तो दैट इज नेगेटिव सिचुएशन। तो दो सिचुएशंस आपको याद रखनी है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू क्लियरली। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर कभी भी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से ज्यादा है तो इट इज अ नेगेटिव अमाउंट, या इसको आप कह सकते हो, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग को आप कह सकते हो इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कभी कभी हमको एक ही फिगर दे रखी होगी, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो आपको कंफ्यूजन होगा एग्जाम में कि सर इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है, इज इट एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग और ओपनिंग ओवर क्लोजिंग? तो इट इज ऑलवेज क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, तो ये नेगेटिव रहेगा। और पॉजिटिव क्या है,
पॉजिटिव आप लोग खुद ही बता देंगे। एक्सेस ऑफ व्हाट? एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग ज्यादा है उससे तो इट इज अ पॉजिटिव सिचुएशन एंड इसको हम ऐड करेंगे, या इसको आप कह सकते हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री भी हमेशा ऐड ही होता है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस एंड डिक्रीज इन इन्वेंट्री इज प्लस। अब अगर ये आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा एग्जामिनेशन में तो इस कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट को आप हैंडल कर पाओगे, अदरवाइज यू विल बी बैडली कंफ्यूज। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। यहाँ पे आपने देखा कि 6,90,000 का आपका परचेज है और परचेज के बाद आपको एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो क्लोजिंग ओवर ओपनिंग मींस नेगेटिव सिचुएशन। तो नेगेटिव को आप क्या करोगे? एकदम माइनस। 6,40,000 आपका क्या निकल कर आ गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आरएफओ भी मौजूद है आपके पास, अवेलेबल है कॉस्ट ऑफ आरएफओ भी। तो आप कहोगे कि जीपी रेशो तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी सेलिंग प्राइस यानी कि टोटल सेल्स आरएफओ में से क्या माइनस कर दें? कॉस्ट ऑफ आरएफओ, व्हाट वी गेट? ग्रॉस प्रॉफिट। सो इजी। अब आप जीपी रेशो का आंसर कंफर्म कर लो अपना कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 1,60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमारी कितनी आएगी? डिवाइडेड बाय आरएफओ 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। 520 is 100, that means 20%. So part C is the correct option. इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिएगा यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन वेरी कॉन्फिडेंटली, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कंफ्यूज नहीं कर सकता कि आपको कहीं से कहीं तक भी कोई कंफ्यूजन आ जाए कि सिर्फ हमने आपके लिए 7-8 क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं, लेकिन उन 7-8 क्वेश्चन में ही यू विल गेट द मास्टरी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। हमको गिवन है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, परचेजेस गिवन है, कैरेज इनवर्ट्स आपको पता है ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस एंड सैलरीज ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब आपको याद होगा अगर ये सैलरीज एंड वेजेस होता तो हम इसको इनडायरेक्ट मानते, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि मेजर पोर्शन उसमें सैलरीज का हो जाता है। लेकिन अगर फर्स्ट वर्ड वेजेस है तो इसका मतलब इस टोटल एक्सपेंडिचर में मैक्सिमम पार्ट इज फ्रॉम द वेजेस ओनली। कैरेज आउटवर्ड हम नहीं लेंगे बिकॉज ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आउटवर्ड मीन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स। डिक्रीज इन इन्वेंट देखिएगा, अभी आपको वो टेबल काम आने वाली है बहुत ज्यादा, जो हमने आपको ऊपर दिखाई थी। डिक्रीज इन इन्वेंट्री ये हमने ग्रीन में लिखा था, डिक्रीज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंक्रीज इन इन्वेंट्री और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इज नेगेटिव। तो अब आपको बिल्कुल जीरो कंफ्यूजन रहेगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री हम हमेशा और हमेशा क्या करेंगे बताइएगा? quickly tell me. Decrease in inventory means what? Opening is more than closing, so it is a positive situation, so we will add this. Return outward क्या बताया था हमने आपको? परचेज रिटर्न्स को कहते हैं। ये जो गुड्स हमने परचेज करे तो द रिटर्न बैक आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो परचेज रिटर्न है, परचेज में से माइनस हो जाएगा। रेशो ऑफ कैश आरएफओ एंड क्रेडिट आरएफओ दे रखा है 1:3। दैट मीन्स कैश आरएफओ इज 1 एंड क्रेडिट आरएफओ यानी कि क्रेडिट सेल्स जो हमारी है वो 3 टाइम्स है उसका कैश आरएफओ का। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। हाउ टू कैलकुलेट? फॉर्मूला सिंपल है, जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। तो अब हम जीपी निकालने के लिए या ग्रॉस प्रॉफिट से पहले हमको एक आरएफओ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। आरएफओ का फॉर्मूला अब आपको बिल्कुल लर्न हो गया होगा। हम दोनों सेल्स को, कैश सेल और क्रेडिट सेल्स दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो आरएफओ हमको गिवन है, कैश आरएफओ गिवन है आपको 25,000, और ये बोल रहा है आपसे लास्ट में कि रेशो जो कैश आरएफओ और क्रेडिट आरएफओ का है वो 1:3 है। मतलब क्रेडिट आरएफओ इज 3 टाइम्स ऑफ कैश आरएफओ। इफ कैश आरएफओ इज 1 तो क्रेडिट आरएफओ इज 3 टाइम्स, तो इट मीन्स 75,000। तो अब आप आरएफओ को तो बड़े आराम से निकालकर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे कि 1 लाख इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए वी कैन गेट द आंसर, बट ग्रॉस प्रॉफिट में पहुंचने के लिए व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मूला क्या है इसका? आप देख सकते हो
लॉन्ग वाला फॉर्मूला लगेगा जो सबसे कॉमन फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. Opening inventory is given clearly to us and closing inventory is also given clearly, means इन दोनों का difference आपको दे रखा है. Clearly means decrease in inventory is given and decrease means opening is more than closing. तो opening inventory is how much and closing inventory आप बोलेंगे सर ये तो difference है, तो ये तो already plus हो जाएगा. तो 10,000 हमारे पास plus का value हो जाएगा और परचेजेस आपको गिवन है 75,000. क्लोजिंग इन्वेंट्री का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस आपको पॉजिटिव दे रखा है 10,000 रुपीज. तो विद फुल कॉन्फिडेंस यू कैन राइट द क्वेश्चन नंबर 3 अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड ओपन दिस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. बताएं इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आएगा स्टूडेंट्स? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी 10,000 is the opening inventory, purchases and direct expenses. डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पर हमको क्या दे रखा है? दो एक्सपेंस दे रखे हैं. देखिए ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कैरेज इनवर्ड एंड वेजेस एंड सैलरीज. तो कैरेज इनवर्ड्स इज 2,000 एंड वेजेस एंड सैलरीज आर 5,000. एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, हमने क्या बताया था? परचेज रिटर्न्स. दीज परचेज रिटर्न्स आर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम परचेजेस. तो हमारा फाइनल आंसर कितना निकल कर आएगा? 10,000 एंड 75 माइनस 2 इज 73. परचेज हमारी जो नेट लेते हैं, फॉर्मूले में याद रखिएगा अपनी एग्जामिनेशन में भी कि इट इज नॉट सिंपल परचेज, इट इज नेट परचेज. नेट मींस आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग रिटर्न्स. और 2 + 5 7,000 आपका हो जाएगा. तो दिस इज द इन्वेंट्री, दिस इज द नेट परचेज, दिस इज द डायरेक्ट एक्सपेंस which will give you 83 and 7 90,000 rupees cost of RFO. अब आप ग्रॉस प्रॉफिट को इन 1 सेकेंड यू कैन कैलकुलेट 1 लाख माइनस 90. तो जो निकल कर आ रहा है आपका 10,000. तो जीपी रेशो कितना आएगा आपका बताएं? जीपी रेशो भी आप वो भी निकाल सकते हो कि 10,000 का प्रॉफिट 1 लाख की सेल्स पर हो रहा है तो 10% इज द आंसर. कैसे निकालेंगे? जीपी इज द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 1 लाख रुपीज and the answer is coming 10%. So answer C will be the correct one. Let us see the fourth question of the chapter of this assignment. The average inventory of a company is 1,60,000. Inventory turnover is given. देखिएगा अब twisted question आपको सामने आ गया है. ये inventory turnover is 8 times. Average trade receivables turnover ratio is also given. Cash RFO is given. And gross profit ratio will be what? अब आपको देखिएगा कई सारे फॉर्मूला इसने आपसे निकलवा लिए हैं और पूरी मेहनत करके आपसे निकलवाएगा. इस क्वेश्चन को वो लोग आपको एज ए केस स्टडी भी दे सकते हैं इन द बोर्ड एग्जामिनेशन कि व्हाट ऑल आइटम्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नाउ टू रीच एट द आंसर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. वी विल बी कैलकुलेटिंग सम मोर आइटम्स. तो आपको केस स्टडी के तौर पर भी आ सकता है. कैसे आएगा और क्या क्या हम इसमें कैलकुलेट करना होगा? लेट अस अंडरस्टैंड. एवरेज इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री टर्नओवर. सबसे पहले एक बात याद रखो कि जो भी रेशो आपको कैलकुलेट करके दी होगी एग्जामिनेशन में उसका फॉर्मूला जरूर लगाएंगे आप. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर? कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री टर्नओवर गिवन है आपको 8 टाइम्स. कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमको नहीं गिवन है, इसको एज इट इज लिख देंगे. एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन है which is 1,60,000. So 1,60,000 into 8 is how much? This will be cost of RFO. तो cost of RFO आपका कितना आएगा? 1,60,000 into 8, 16 8s are 128. तो 12,80,000. कोई भी कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस में कैलकुलेटर से मत करिएगा, नहीं तो एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन में एरर आ सकती है. यू शुड प्रैक्टिस मैनुअली. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 12,80,000 स्टूडेंट्स. सबसे पहली चीज हमारे पास आ चुकी है. दूसरा हमको दिया है क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. व्हाट इज द फॉर्मूला? इससे हमको आरएफओ मिलेगा. ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. ये है हमारा फॉर्मूला फॉर द ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, TRTR. आपको TRTR दिया है 6 टाइम्स एंड 6 इज इक्वल्स टू क्रेडिट आरएफओ. आपको नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में और आपको दिया क्या है इन्होंने? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. तो क्रेडिट आरएफओ को क्रेडिट आरएफओ लिख देंगे
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आपको गिवन है कितना रुपीस, 2 लाख। तो आप कहेंगे क्रेडिट आरएफओ, तो फिर बड़े ही सिंपली निकल जाएगा आपका 6 इंटू 2 लाख, दैट इज 12 लाख। तो क्रेडिट आरएफओ आपके पास आ गया है, कॉस्ट आरएफओ आपके पास आ गया है। अगर कैश आरएफओ आपके पास आ जाएगा तो आपके पास टोटल आरएफओ आ सकता है। नाउ लेट्स सी द कैलकुलेशन ऑफ कैश आरएफओ। कैश आरएफओ बोलता है 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अब आपको क्या करना होगा, यू नीड टू गो फॉर वन मोर कैलकुलेशन, दैट इज कैश आरएफओ इज 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो हमें पता ही नहीं है, तो जो चीज हमें नहीं पता होती इसको हम क्या मान लेते हैं मैथमेटिकली, एक्स। एंड आरएफओ का फॉर्मूला क्या होता है, आरएफओ इज इक्वल्स टू व्हाट, कैश आरएफओ प्लस व्हाट आरएफओ, क्रेडिट आरएफओ। इस क्वेश्चन को करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा टीआर के क्वेश्चंस करने में भी। जो हमारा असाइनमेंट टीआर का है वहां पर भी आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा करने में। तो एक्स हो गया आरएफओ, कैश आरएफओ के लिए वो बोलता है 25% ऑफ आरएफओ। तो 25% मीन्स 25/100, दैट मीन्स 1/4 ऑफ एक्स। तो एक्स बाय 4 हो गया कैश आरएफओ। और क्रेडिट आरएफओ आपने जस्ट नाउ कैलकुलेट करा है 12 लाख। मैथमेटिकली इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, माइनस में हो जाएगा, दिस विल बी 12 लाख। तो 4x माइनस एक्स इज 3x बाय 4 इक्वल्स टू 12 लाख, इजी। एंड 3x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 4, 48 लाख। अब आप बता सकते हो कि x यानी कि जो मेन फिगर हमें निकालनी थी आरएफओ, वो कितनी हो जाएगी, 48/3। एंड 3 के टेबल में 48 कहाँ आता है, 3 1s आर 3, 3 6 आर 18। तो x हमारे पास निकल कर आ गया 18 lakhs. This is how we will be getting the revenue from operations. अब दोनों आंसर आपके पास अवेलेबल है, आरएफओ भी आपके पास आ चुका है विच इज 16 lakhs एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी आपके पास शुरू में ही आ गया था 12 lakhs 80,000। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, फटाफट बताइएगा। इज द डिफरेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो 16 lakhs आरएफओ में से आप कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस करके बताओ कितना बचेगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। यू विल से 3,20,000। तो जीपी रेशो निकालना अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है, आरएफओ 16 लाख अवेलेबल है। 32 के टेबल में 160 कहाँ जाता है, 5 इंटू 100, दैट मीन्स 20% इज द करेक्ट आंसर। होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से देखें इसी क्वेश्चन के वीडियो को और इसको खुद प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग देखने से आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये चीज हो जाएगी एग्जाम में, बट बिलीव इट स्टूडेंट्स, इसको करके देखना है आपने 2 to 3 टाइम्स। अब न्यूमेरिकल्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे क्वेश्चंस हैं लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 60, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। सिंपल है, ओपनिंग इन्वेंट्री का 1.5 मीन 60 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर भी दे रखी है। सेलिंग प्राइस के लिए बोलता है कि इज 33 1/3% ऑन अबव कॉस्ट। अबव कॉस्ट, जब भी कभी वो सेलिंग प्राइस अबव कॉस्ट बोले, इट रेफर्स टू व्हाट, इट रेफर्स टू प्रॉफिट, द ग्रॉस प्रॉफिट। भाई सेलिंग प्राइस हमारी हमको दी है 33 1/3% कॉस्ट से ज्यादा है। तो कॉस्ट से ज्यादा क्या चीज होगी, भाई कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं कि हमको सेल्स मिल जाती है, सेलिंग प्राइस मिल जाती है। हाउ टू गेट द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में हम क्या ऐड करें कि हमें सेलिंग प्राइस मिल जाए। आप बोलेंगे ऑफ कोर्स प्रॉफिट ऐड कर देते हैं हम इसमें। तो यस, तो कॉस्ट प्राइस हमारी जो भी है उसमें 33 1/3% ऐड कर देते हैं हम कुछ, तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट से 33 1/3% ज्यादा है। तो 33 1/3% क्या चीज हो गई, इट इज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। एब्सोल्युटली राइट। और 33 1/3% का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होता है, 33 1/3% का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होता है बताएं, 100/3%, दैट मीन्स 1/3। तो प्रॉफिट हमको दे रखा है 1/3 ऑन कॉस्ट, राइट। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से हम निकाल देंगे अपना क्लोजिंग इन्वेंट्री
is 1.5 times, that means 60,000 का 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स 90,000 आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। और इन्वेंट्री टर्नओवर आपको दे रखा है 6 टाइम्स। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में गिवन है 60,000, तो ओपनिंग और क्लोजिंग टोटल कितना हो जाएगा इसका 1,50,000। और एवरेज कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का सम है 150 डिवाइडेड बाय 2 करा, इट इज कमिंग 75,000। सिंपल, डन। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि आईटीआर आपको दे रखा है 6 टाइम्स, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आईटीआर, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, जो हमें निकालना है अपने ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, आपने अभी कैलकुलेट करी है, तो 75,000। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ आपका कितना आएगा, दैट इज 75,000 इंटू 6 मीन्स 4,50,000। इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज इक्वल्स टू इधर है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,50,000 आ जाएगा। एंड ग्रॉस प्रॉफिट के लिए वो आपको क्या बोलता है, 1/3 ऑन कॉस्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हैं 1/3 ऑफ 4,50,000, दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,50,000। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा, एक माइंड में क्वेश्चन होगा आपके, कंफ्यूजन तो आपको हो ही नहीं सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट आरएफ। अब आरएफओ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस जीपी और माइनस जीपी, एब्सोल्युटली राइट, कॉस्ट ऑफ आरएफओ 4,50,000 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा आपका 6 लाख। और ऐड, तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस जीपी इज इक्वल्स टू आरएफओ, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम। जीपी रेशो अब बता दें आप कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो विल कम, ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000 divided by RFO, that is 6 lakh, and 15/4 are 60, और आप देख सकते हैं कि 25% हमारा आंसर आ गया है। द फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। होप ये 5 क्वेश्चंस आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिलाने में मदद करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आप टेंशन नहीं देगा। तो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम इन जीपी रेशो कैन अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस दीज 5 क्वेश्चंस। अब एजर्शन रीजन का क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है आपके, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, अब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इंप्रूव व्हेन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिक्रीजेस। ऑफ कोर्स ये बात तो सही लगती है देखने में, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमारी इंप्रूव करेगी अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कम होगा। क्यों, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, आप कहेंगे फॉर्मूला इज आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको प्रॉफिट 50,000 का होता है स्टूडेंट्स, और आरएफओ आपका 2 लाख है, और कॉस्ट ऑफ आरएफओ आपका 1,50,000 है, अब आप देख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिक्रीज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगा। अगर हम इसको कम कर दें, 1,50,000 से 1 लाख कर दें, सपोज ये कॉस्ट हमारी कम हो जाती है और सेल्स हमारी वही रहती है 2 लाख, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 1 लाख। तो 1 लाख का प्रॉफिट अब 2 लाख की सेल पर आ रहा है, तो इट इज अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ द कंपनी दैट द रेशो इज इंक्रीजिंग। पहले रेशो हमारी 50,000 अपॉन 2 लाख थी, दैट मीन्स 25%, अब 1 लाख अपॉन 2 लाख है मीन्स 50%, तो 25 से 50% हो गई, तो रेशो विल इंक्रीज, तो जीपी रेशो इंप्रूव, असर्शन इज करेक्ट। और रीजन में क्या बोलता है वो आपको देखते हैं, रीजन करेक्ट है इनकरेक्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएफओ एंड कॉस्ट ऑफ आरएफओ, बिल्कुल दिस इज करेक्ट, दिस इज हाउ वी हैव फाउंड आउट के इंप्रूव हुआ था रेशो। हेंस इफ आरएफओ इंक्रीजेस, या फिर आरएफओ इंक्रीज करे या कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिक्रीज करे, विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ आरएफओ, जीपी रेशो इंक्रीज। तो दोनों बातें सही हैं कि दोनों ही सिचुएशन में रेशो इंक्रीज होगा। We will choose the first option. Both A and R are true, and R is the correct explanation of assertion A. 7th question आप देख सकते हो, the second last question. Gross profit ratio is 20%. Purchase of inventory 40,000 का हुआ है हमारा, इससे रेशो पर क्या इफेक्ट आएगा? Will increase the ratio, will decrease the ratio, will not change the ratio, or none of these. तो सबसे पहले आप जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बात आप अपना माइंड में रखो कि जीपी रेशो अगर आप कहेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है जीपी रेशो का, जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। एंड व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, अगर मैं आपसे कहूं कि आरएफओ
माइनस कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो बात तो वही है, सिर्फ हमने ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो जो फॉर्मूला है वो हमने इसका ओपन कर दिया टू टेक अ डिसीजन वेदर द रेशो विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो इन्वेंट्री अगर हमने परचेज किया है स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ RFO। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर कॉस्ट ऑफ RFO में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इस रेशो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इन्वेंट्री के परचेज करने से, ऑफ कोर्स द परचेजेस विल इंक्रीज, परचेज हमारा इंक्रीज करेगा और साथ में हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री भी इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जब परचेज बढ़ेगा तो वही स्टॉक हमारा ईयर एंड पर बचेगा हमारे पास। तो ये एक इनका कोरिलेशन है कि परचेज अगर हमारा होता है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी इंक्रीज करता है। लेकिन एक फिगर प्लस है, एक फिगर माइनस है, तो जितनी वैल्यू से वो इंक्रीज होगा उतनी ही वैल्यू से वो माइनस भी हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विल रिमेन द सेम। और RFO पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि कुछ सेल हुई नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ RFO विल रिमेन सेम, नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ RFO। और अगर कॉस्ट ऑफ RFO भी सेम है, RFO भी सेम है, तो रेशो भी नो चेंज होगी। आपका करेक्ट आंसर होगा द रेशो विल नॉट चेंज। अंडरस्टूड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 25%, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट will increase the ratio, decrease the ratio or not change the ratio। तो वही हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जीपी रेशियो का। फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO। ग्रॉस प्रॉफिट किसे कहते हैं, RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO। आप ऐसे लिखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO। अब अगर आपने सेल किया है 40,000 रुपीज में, राइट, अगर आपने इसको 40,000 में सेल किया है, एट कॉस्ट लिखा है इसमें, 40,000 की चीज 40,000 में ही सेल कर दी, तो आपकी जो RFO है ये इंक्रीज हो जाएगी 40,000 रुपीज से। दिस विल इंक्रीज बाय 40,000 स्टूडेंट्स। और यहां पर भी 40,000 से क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अब अगर हमारा ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऊपर भी 40,000 से इंक्रीज हो रहा है और नीचे भी 40,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से 25% हमको दे रखा है, अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि अगर हम इसको सिंप्लीफाइड वे में देखें तो 25,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 करके रखते हैं। और आपको मैं कॉस्ट के बिना इसको सिखाता हूँ, क्योंकि कॉस्ट से तो आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है, लेकिन अगर ये प्रॉफिट पे सेल होगा तभी ये ग्रॉस प्रॉफिट वाला कंसेप्ट बनेगा। तो एक बार हम इसको प्रॉफिट के कंसेप्ट से देखते हैं। सेल ऑफ इन्वेंट्री ₹40,000 विल इंक्रीज द रेशियो और डिक्रीज द रेशियो। तो 40,000 में आपने इसको सेल किया है, जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो 40,000 रुपीज की है, जिसको आपने 25% प्रॉफिट पे सेल किया है। कॉस्ट पे तो हम सेल कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 40,000 की चीज अगर आप 25% प्रॉफिट पर आप इसको, अगर आपने इसमें ऐड करके करा है, तो यू कैन वेरी वेल मेक आउट कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विल इंक्रीज, बट जो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल में आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली देखना होगा। देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है इसका स्टूडेंट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, हम हर बार आपको लिखकर दिखा रहे हैं, अब आपको याद भी हो गया होगा, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो अगर सेल होगा तो उस सिचुएशन में हमारा परचेज डिक्रीज हो जाएगा, और परचेज अगर डिक्रीज होगा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा, राइट स्टूडेंट्स। सो बोथ विल डिक्रीज। तो परचेज भी हमारा डिक्रीज हो रहा है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक फिगर प्लस का है, एक फिगर माइनस का है, तो कॉस्ट ऑफ RFO विल रिमेन अनचेंज्ड। कॉस्ट ऑफ RFO हमारा नॉट चेंज रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ RFO हमारा अगर नॉट चेंज रहेगा तो यू कैन वेरी वेल मेक आउट कि आपका परचेज कम हो गया, क्योंकि जो गुड्स आपने परचेज करा था वो डिक्रीज हो गया और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपका डिक्रीज हो गया। तो कॉस्ट ऑफ RFO विल नॉट चेंज। और प्रॉफिट
हमको जो हमारा 40,000 रुपीज का प्रोडक्ट हमने सेल करा है अपने पास से, उसको 25% प्रॉफिट पे आपने सेल किया है, इट मीन्स यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज। तो इसका मतलब क्लियरली अंडरस्टूड है कि हमारा जो सेल्स है, जो हमारा प्रॉफिट है, वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा बाय 10,000 रुपीज, एंड द RFO will remain the RFO will increase and the cost of RFO will not change। और ऊपर हमारा लेकिन प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। कितने अमाउंट से? उतने ही अमाउंट से जितने रुपीस का आपको प्रॉफिट हुआ है, दैट इज बाय 10,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट विल, इसका आप रीजन क्या देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज एज RFO। तो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट भी उसी परसेंटेज से इंक्रीज हुआ जितना हमारा RFO इंक्रीज हुआ है, देयरफॉर द रेशियो विल नॉट चेंज। So you practice these questions and I am confident you will be able to handle all these questions very comfortably अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन हमारा आता है with regard to gross profit ratio। Right students, all the best to all of you and I am very confident you will do very well in the examination। Thank you।